السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج بتاریخ 9 دسمبر بروز ہفتہ انتظامی کمیٹی جمعیت الانصار تاجران و نوجوان جلیل پورہ بھونگیر کی میعاد ختم ہونے پر جدید کمیٹی کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا، جس کو مرکزی کمیٹی کے معتمد جناب الحاج محمد محی الدین اور خازن کمیٹی الحاج محمد شجاع الدین کے علاوہ الیکشن آفیسر ٹی ذاکر کے رفیق کلیانی جمیل احمد کولاس مصطفیٰ قادری کی نگرانی میں یہ طے پایا۔ بحیثیت صدر کے عہدے کو الحاج محمد اقبال چودھری، معتمد کے لیے کلیانی کاظم، خازن کے لیے بی رحیم الدین کو بلا مقابلہ منتخب کر دیا گیا، اور سابقہ کمیٹی کے صدر محترم علی جناب الحاج محمد شیخ میرا چودھری کی ہدایت پر سابقہ کمیٹی کے معتمد محمد ارشاد اندوری نے حسابات پیش کیا اور تفصیلی گفتگو اپنے 3 سالہ خدمات پر روشنی ڈالی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام، کلمہ گویان ایمان، امت خیر الانام، اب تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العزت میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل اور آپ تمام حضرات کا جو ہے نا ہمارے ساتھ 3 سال بلا کسی جھجک کے جو ہم کو ساتھ دیے، آپ تمام احباب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدر محترم علی جناب الحاج محمد شیخ میرا صاحب جو سابقہ صدر ہمارے ساتھ 3 سال جو کام کیے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر یہ بہت بڑا انقلابی کام ہوا۔ والد ماجد قائد اثر بے لوث خدمت کے مسیحا علی جناب محمد اقبال احمد اندوری صاحب نور اللہ مرقدہ کی تربیت کا صلہ ہے آج یہ بندہ آپ کے سامنے کچھ بولنے کا قابل بنا۔ اور دوسری بات، والد محترم کے بعد اگر کسی کا مقام میرے سامنے ہے تو علی جناب الحاج شیخ میرا صاحب کی ذات ہے۔ اور میں ہمارے تمام کمیٹی کے احباب، جیسا کہ ابھی میں آپ کو ذکر کروں، کلیانی عتیق الرحمان صاحب، چودھری اصغر علی صاحب اور علی جناب الحاج محمد اندور شکیل صاحب، بی کبیر الدین صاحب، ہمارے ساتھ علی جناب جہانگیر صاحب چودھری اور تمام احباب اراکین منجملہ جو احباب ہمارا ساتھ دیے، ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 1-2 منٹ آپ ہمیں برداشت کر لیں تو احسان عظیم ہوگا۔ جگمگاتے ہوئے معصوم ستاروں کی طرح، جگمگاتے ہوئے معصوم ستاروں کی طرح آپ کے زخم سر شام ضیا دیتے ہیں۔ ہم کو حالات نے ہر وقت یہی درس دیا، ہم کو حالات نے ہر وقت یہی درس دیا، حادثے جینے کا انداز سکھا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، آج بتاریخ 9 دسمبر سال 2023 بروز ہفتہ انتظامی کمیٹی جمعیت الانصار تاجران و نوجوان جلیل پورہ بھونگیر کی 3 سالہ میعاد ختم ہونے پر جدید کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔ زیر صدارت الحاج محمد خواجہ بابر صاحب صدر مرکزی کمیٹی و اعلیٰ عہدیداران مرکزی کمیٹی کی نگرانی میں یہ طے ہوا۔ بحیثیت صدر کے علی جناب الحاج محمد اقبال چودھری صاحب، بحیثیت معتمد کے کلیانی کاظم صاحب، بحیثیت خازن بی محمد رحیم الدین صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا۔ لہٰذا سابقہ کمیٹی صدر الحاج محمد شیخ میرا صاحب چودھری، معتمد محمد ارشاد اندوری، خازن کلیانی عتیق الرحمان صاحب، وہ نائب صدور، وہ نائب معتمدین، وہ اراکین عملہ نے اپنے 3 سالہ کارکردگی میں منجملہ ترقیاتی کاموں میں عمل آئے جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدرسے حاضہ کی بلڈنگ جو باہر سے اثرکاری اور چنا پانی، چھت پر فلورنگ اور بہترین آفس کا قیام جو تخمیناً 11 لاکھ روپے مالیت سے تکمیل کو پہنچا۔ نمبر 2، چودھری عبدالقیوم صاحب مرحوم، چودھری عبدالحق صاحب مرحوم جو اپنی زندگی میں مسجد و مدرسے کو 527 مربع گز اراضی جو محلے سے منسلک ہے صرف بانڈ پیپر پر تحریر تھی، جس کو ان کی صاحبزادیوں کی مدد سے حافظ وزیر علی صاحب کی اہلیہ محترمہ سے رجسٹریشن عمل میں آیا۔ محلے کے مسجد صحابہ نمبر 3، محلے کے مسجد صحابہ میں ماہانہ چندہ نہ کے برابر تھا، جس کو ہر گھر میں ایک ڈبہ رکھ کر مالی فراہمی میں اضافے کو شکل دی۔ نمبر 4، مدرسے کو نرسری تا 8م جماعت یعنی 8th کلاس انگلش میڈیم کر دیا گیا۔ نمبر 5، مدرسہ میں ڈریس کوڈ نافذ ہوا۔ نمبر 6، بقا فنڈز گروپ کو چلایا گیا جس سے مدرسے کو مالی امداد میں مستحکم ہو۔ نمبر 7، چودھری محمد عظیم الدین صاحب مرحوم کی دخترہ محترمہ طیبہ بیگم صاحبہ کا جو اپنا ایک ذاتی مکان مسجد صحابہ کو وقف کر دی، جس کو رجسٹریشن مسجد کی رقم سے کرا دی گئی۔
नंबर 8, मस्जिद साहबा को वक्फशुदा मकान रमीज़ा बी साहिबा मरहुमा का मकान मुनादिम करके जदीद बिल्डिंग G+1 तखमीनन 35 लाख की मालियत से तामीर करवाई, जो एक तारीखी अमल है। नंबर 9, हर माह की तीसरी इतवार को ख़वातीन का तरबियती इज्तिमा का नज़्म कायम किया, जो एक अहसन अमल है। नंबर 10, मदरसा जो 430 मुरब्बा गज पर 3 मंजिला इमारत जो मोहम्मद शेख मीरा मोहम्मद ख्वाजा के नाम पर मुस्पल टैक्स था, जिसको नाम तब्दील कर दिया गया। नंबर 11, मोहतरमा रमीज़ा बी साहिबा मरहुमा ज़ौज अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम के नाम पर मुस्पल में दर्ज था, जिसको महल्ले के मुखलिस अहबाब की इमदाद से रजिस्ट्री करवाई। नंबर 12, हफीज साइकिल टैक्सी जो मदरसे की मलगी है, जो तखमीनन 15 साल कबल रजिस्ट्री करवाई गई थी, लेकिन मुस्पल में नाम तब्दील नहीं हुआ था, जिसको तब्दील कर दिया गया। नंबर 13, मदरसे का रिकॉग्निस जो 10 साल कबल लिया गया था, जिसका वक्त हो चुका, दोबारा रिन्यूअल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद के साथ अमल में आया, जिसको DO ऑफिस में कुछ रकम दे के लाना है। नंबर 14, मदरसा खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया की बिल्डिंग 2 अहबाब के नाम पर थी। नंबर 1, मोहम्मद शेख मीरा मदरसे की रकम से, और नंबर 2, मोहम्मद ख्वाजा के नाम से रजिस्ट्री साबिक़ MLA पहला सेक्रेटरी साहब की रकम 1,20,000 रुपये से करा दी, जो एक तारीखी अमल है। इसके बावजूद कांग्रेस के मौजूदा MLA कुम्मम अनिल कुमार रेड्डी साहब से भी 1.5 लाख का हमें जो है ना ताउन हासिल रहा। ये थी 3 साल कारकर्दगी, लेकिन इसके बाद 3 साल कबल वसूल होने वाली रकम कमेटी से लेकर 2021 था 2022 और 2022 था 2023 तक इजमाली रिपोर्ट और मैं अलावे के साथ पेश खिदमत है। 230 तलबा स्कूल में बासलाहियत व आला तालीम के 13 असातिज़ा किराम, 2 खादिमा और 1 बावर्चन का अमला है, और नर्सरी ता जमात हश्तुम तलबा को मुहैया कराया जाता है। स्कूल में हर जमात में 2 फ़यान तलबा के लिए टेबल और 6 अदद कंप्यूटर और ऑफिस वर्क के लिए अलहदा कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन, 100 अदद प्लास्टिक के कुर्सियाँ और बावर्ची खाने में नए सिल्वर के भगोने और हर किस्म का स्टील बर्तन दस्तयाब है। इसके अलावा मस्जिद के मकान मोहतरमा रमीज़ा बी साहिबा मरहुमा वक्फशुदा की रजिस्ट्री के दस्तावेज़ात नंबर 9962 और अब्दुल क़य्यूम साहब चौधरी मरहूम अब्दुल हक साहब चौधरी मरहूम के वक्फशुदा अराजी के दस्तावेज़ात नंबर 9588, मदरसे हाजा के रजिस्ट्री दस्तावेज़ात शेख मीरा नाम के, जिसका डॉक्यूमेंट नंबर 4658 और ख्वाजा के नाम के दस्तावेज़ात नंबर जो अभी हमको मौसूल नहीं हुआ, और मस्जिद साहबा को मोहतरमा तैयबा बेगम साहिबा का वक्फशुदा मकान की रजिस्ट्री दस्तावेज़ात नंबर 9822 और जो भी लिंक दस्तावेज़ात है मुंजमिला आप तमाम अहबाब बिलखुसूस मरकज़ी कमेटी के रूबरू जदीद कमेटी को हवाला करते हैं। लिहाजा ये कौम मिल्लत की अमानत को कलम बंद किए वक्त ज़रूरत काम आए। और नए अहबाब जो यहाँ पर मुंतखब है, उन तमाम अहबाब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनको दिल से गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अपना तो काम है कि जलाते रहो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते रहो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम बरादरियों का ख़ास करके भोंगी जेलपुरा हमारे महल्ले वालों का सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो ये मौका मेरे को जो दिए। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग से मिलकर सबकी बुराइयां दूर करके सबके साथ अच्छा मिल सके हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों की अमानत है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा नौजवानों का ताउन होना बहुत ज़रूरी है। टाइम दे आए, मैं सबसे ख्वाहिश करता हूँ, हमारे में कोई बुराई कोई ये नहीं है, ये सब जो है सो अपने आखिरत का काम करने का काम है, इसलिए आप लोग सब साथ देते हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही जो है सो इतनी जिम्मेदारी के साथ जो मरकज़ कमेटी आकर हमारे पास यहाँ पर जितना टाइम देकर सब जो है सो किसी तकलीफ के महसूस करे न करे हुए लाकर जो है सो ये सब काम को अंजाम दिए, उनका खास करके उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साबिक़ा जितने भी सदर मोहतमद जो भी कमेटी वाले हैं अब तक जो भी गुजरे उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी कोशिश रही और हमें भी आगे भी आप लोग भी हमें राय देंगे और जो भी चीज़ हो हमारे साथ रहेंगे। मैं इसी उम्मीद करता हूँ अल्लाह उनके पूरी उम्मीदों को हम पूरे भंगीर वाले जहाँ भी हो सबकी कोशिश ये रही कि हमारी पुरखों की चीज़ को क़ायम रखे आगे बढ़ाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जो हैदराबाद से जमीयतुल अंसार की कमेटी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अहदेदारों का मैं शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 8 दिन से जो मुसलसल हमारे कमेटी के इलेक्शन के वास्ते जो लोग अपना वक्त ज़ाया करें, ये मदरसा ख़तीम जामिया इस्लामिया अरबिया ये बड़ों का लगा हुआ चिराग है। ये इसको हमारे बड़े चलाते हुए आए हैं। जो भी हजरात इसको चलाए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। जो लोग जो गुज़िश्ता 3 साल करे हैं, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ, इसलिए कि बहुत से अच्छा काम हुआ 3 साल के अंदर, बेहतरीन अंदाज में चले लोग। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे को जो मौका दिए हैं, हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे। मैं हमारी पुरानी जो साबिक़ा कमेटी और पूरे मोहल्ले से मेरी गुजारिश यही है कि हम सब मिलकर, हम एक बिरादरी है, एक हमारी एक पहचान है, हमारी एक सोसाइटी एक पहचान है जमीयतुल अंसार। हम ये ओहदों को देखना नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर एक जहती पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके हम सब एक जहती के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल रहेगा ये। क्योंकि ये मदरसा, ये मस्जिद, ये हज़रत शाह जलील क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा है। ये हम सब इसको याद रखते हुए हम सब मिलकर एक जहती का सबूत दे। ये जमीयतुल अंसार कमेटी जो आज ओहदेदार यहाँ पर आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम में कोई वो नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, काम करें। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आज मेरे को जो इसके ओहदे का जो इंचार्ज दिया गया है हलफनामा के लिए, मैं सब इसको इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सकता अच्छे से अच्छा निभाने की कोशिश करूँगा। और आने इंशाल्लाह 3 साल के बाद हर बच्चा सामने आएगा, मैं करूँगा बोल के इंशाल्लाह एक ऐसी मिसाल हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं जमीयतुल अंसार के ओहदेदारों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट बात करें बी मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब। नाकाबिल है हम लोग इस पोजीशन के लिए, मगर फिर ये हज़रत का ये फ़ैसला होगा कि मैंने चंद ही लम्हों में मेरे इरादा चेंज हुआ और फिर से खाज़न के लिए आगे बढ़ा हूँ। हमको काम की ज़रूरत है, काम यहाँ बहुत है। यहाँ पर काम करने के लिए सबका साथ होना पड़ेगा, 3 जन से नहीं होगा। हर एक महल्ले वाला की जिम्मेदारी है कि इसको काम को अंजाम दिए। हमारे पास अभी पिछली कमेटी अच्छा डेवलप की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बिल्डिंग की जो पहले हालात थी इसकी नामो निशान चेंज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग का भी हमको साथ देना। स्टडीज़ लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहिर टीचर्स, बीएड टीचर्स को लाए अपने, इंशाल्लाह अच्छा काम किया। उसी लेवल में चलना है मदरसा, उसी लेवल में चलना रहा तो क्या होना, आपका साथ होना पड़ेगा। 3 जन से तो नहीं होता, 3 मेंबर्स नहीं हो सकता। तो ये अभी ये क्या है, अब ये हर चीज़ के लिए अब महाना खर्चा है, सब कुछ आप लोग साथ देना पड़ेगा। मेन हमारे महल्ले का साथ ज़रूरी है। इससे पहले काबिल हज़रत का ये चलेगा, हज़रत का हमारे पास साया है, इस महल्ले पर साया है। हज़रत की एक सीधी राह नहीं दिखती कि सदा रोज़े रोशन में हज़ारों ठोकरें खाते हैं गुमराह रोज़े रोशन में। यहाँ कांटे भरा रास्ता है, इसको आगे चलना है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। शुक्रिया। इससे जल एक बैठक बिठा के जो है ना बॉडी को मुकम्मल करें, उसके बाद काम आगे बढ़ाएं। मरकज़ी कमेटी जो हमारे भवनगिर तशरीफ़ लाकर कीमती वक्त निकाले आपकी शाल पोशियों के लिए, सबसे पहले सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब से ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारे मरकज़ के मोहतमद अली जनाब मुहिउद्दीन साहब की जो है ना शाल पोशी करें। इसी तरीके से हमारे खाजन साहब शिजाउद्दीन साहब से भी शाम की शाल पोशी और गुलपोशी करें, और जो भी इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उनकी भी शाल पोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरकज़ी जमीयतुल अंसार की तरफ से जो साबिक़ा कमेटी थी उनके कारनामाओं को सराहा जाता है, और इंशाअल्लाह जो नई कमेटी बनी है
اور ان سے بھی قوی امید ہے کہ وہ بھی اپنے کارنامے اسی طریقے سے انجام دیتے ہوئے اور ترقی کے کاموں کو آگے بڑھائیں گے. اور میں اپنی دل کی گہرائیوں سے صدر محترم اور معتمد اعلیٰ اور ہمارے خازن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اسی طریقے سے سابقہ کمیٹی میں بھی جتنے لوگ تھے ان سے بھی ادباً گزارش ہے، سابقہ کمیٹی کے جتنے بھی لوگ تھے جو عہدے پہ تھے، جو رکن شورا تھے، مشیر اعلیٰ تھے، جس طریقے سے سابقہ میں بھنگیر کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ہم جو دوسری ذیلی کمیٹیوں میں بھی جاتے ہیں تو بھنگیر کا ایک تصور الگ طریقے سے ہوتا ہے. وہی کمیٹی کا وہی حالات انشاءاللہ آگے بھی گامزن رہیں گے یہ امید کرتے ہوئے میں صدر محترم اور ان کی تمام رکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے خداحافظ کرتا ہوں. السلام علیکم.